Hello. So let us start today's session. The first question is by Aditya Singh. Sir, how to approach when only lady candidate or children are shown in picture and no candidate of my age group is shown? So Adit, it is not that if no candidate of your age group is shown, then you will leave the story blank. You will not write. I don't know who has put all these things in the mind of these young candidates that the hero of your story has to match your gender and your age. Sorry. You see, there are four criteria for choosing the hero. And if you do not choose the hero correctly, your story may go wrong. And then, after choosing the hero, you have to get appropriate things as per the age, gender, education level, socioeconomic background of the hero. His actions will be as per these things that I just mentioned. Now, only a lady and or a child is shown. So obviously the age and the gender will not match. Now what I was talking about, four things that you must focus on for selecting choosing a hero. The first thing is that the person, male, female, whatever age, child, young, middle aged, old, whosoever it is, should appear to be the smartest, the most enthusiastic person who is appearing to do something, move into action. From his facial expressions, of course, with his body language, he is in action mode. So that is one criteria. Now there can be pictures where the hero, the so-called hero which you are going to choose, is appearing to be gloomy. But if there is a choice, all these things I am telling you when there is a choice of more than one person. So if two people are there, one is looking enthusiastic and the other is looking gloomy, the enthusiastic person you will choose as hero. अभी तक I am not talking about the gender and age. This is the first criteria that the most enthusiastic person out of the many, if more than one are there, then there is a choice. But if only one is there, then there is no choice. In that case, whosoever is there, you will choose as the hero. You will not import the hero. I have never felt any requirement. None of my candidates, the toppers, the recommended candidates, they have never felt the requirement to import the hero after I guided them how to manage. Because in that case, you are defying the picture which is shown to you. You are not comfortable with the characters shown. And you are bringing a new character as per your suitability. So what is the use of showing you this picture? To understand this thing that I have put in earlier video also, but again I am repeating and telling you in detail about hero selection. Now second thing, first thing is the enthusiasm, that he is appearing to be keen to take initiatives, to start something, to start some action. Okay. Now second criteria for choosing the hero, he or she should be the central prominent figure.
Now I give example, suppose a big leader like our Prime Minister, a photo is shown to you. So where will be the Prime Minister? He is the hero in that picture. Where will he be? In a corner? He will be centrally positioned. He will be the most prominent person on whom the camera is focused. So that is another criteria, very simple one, that the person who is prominent, suppose it is your birthday and a photo is taken, where will you be? You will be in the center of that photo. So you will be the hero. The person, the boy, child who is cutting the cake will be the hero, not other people who may match your age. Okay, so this is second criteria, that the hero should be positioned centrally in the picture, prominently, if not centrally, prominently. We will see finally that what all criteria are matching. All may not match, but first thing you will start with the enthusiastic person, second is central figure, now third comes your age and gender. Third age, fourth gender. Now if the age is also matching, the person is enthusiastic, age is matching, he is a central figure, age is matching, very good. But a person who is not enthusiastic, he is not a central figure, he is just standing in a corner looking somewhere gloomy, out of so many people, will he be the hero? His age is matching, gender is also matching. No. Same way, age not matching, gender matching, or gender not matching, age matching, whatever combinations you can make. They are secondary. Age and gender are secondary. हाँ, मिल जाता है अगर के चारों चीज़ें मिल गई तो नथिंग लाइक इट. अगर चारों चीज़ें मिल गई तो नथिंग लाइक इट. लेकिन अगर चारों नहीं मिल रहे हैं तो एज और जेंडर के बेसिस पे आप अगर हीरो डिसाइड करने लगोगे और एक एंथुजियास्टिक सेंट्रल फिगर प्रोमिनेंटली प्लेस्ड पर्सन को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दोगे कि एज नहीं मिल रही या जेंडर नहीं मिल रहा, वो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो. यू आर गोइंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन. एक पिक्चर है जिसमें यू मस्ट हैव सीन, देयर इज वन लेडी, यंग लेडी इन साड़ी, और वॉल पे एक फ़ोटो लगी हुई है माला पहने हुए यूनिफॉर्म में, जिसको माला पहनाई हुई है, फोटो को, फ्रेम को माला पहनाई हुई है. तो माला फोटो को किसको पहनाते हैं? द पर्सन हु इज़ डेड. तो इम्प्रेशन ये दिया है कि दिस पर्सन इज़ डेड, और रिलेशनशिप ये मालूम पड़ रही है कि दिस पर्सन हुज फोटो इज देयर ऑन द वॉल इज द हस्बैंड ऑफ द लेडी. तो लेडी इज ए विडो, शी हैज़ गॉट ए स्मॉल चाइल्ड. अब पिक्चर में खाली लेडी और चाइल्ड दिए हैं. आदित्य, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन डायरेक्टली नाउ. लेडी और चाइल्ड दिए हैं, आप मेल हो, ना लेडी से आपकी एज मैच कर रही है ना जेंडर मैच कर रहा है. जो छोटा बच्चा है, हार्डली 1-2 साल का बच्चा है, जो टॉय से खेल रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, खड़ा भी नहीं हो रहा है, वो बैठा हुआ है और घुटनों में है अपने और क्रॉल सा कर रहा है, और एक छोटा टैंक सा है मॉडल, टॉय मॉडल, उससे वो खेल रहा है. तो इस बच्चे का तो जेंडर भी नहीं पता, बॉय है कि गर्ल है, और एज तो 2 साल का है ये. तो अब क्या करोगे? हीरो ही नहीं चुनोगे? आप इन दोनों में से किसी को भी हीरो चुन सकते हो. लेडी को चुनना चाहते हो तो फिर लेडी के हिसाब से आप स्टोरी को आगे लेके जाओगे, अबाउट हाउ मच एफर्ट शी हैड पुट इन टू रेज दिस चाइल्ड. एक तो ये स्टोरी बन आपके इस डायरेक्शन में जा सकती है. दूसरी जा सकती है जो आजकल आप बहुत देख रहे हो हर पासिंग आउट परेड में, जो एयरमैन की विडो या ऑफिसर की विडो जो शहीद हो गए हैं उनकी विडो
मेहनत करके एसएसबी क्लियर करके और वो अफसर बन रही है। तो ये भी थीम आपने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। तो क्या ये लेडी के थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी, अपना डिटर्मिनेशन, अपनी फाइटिंग स्पिरिट, सारी क्वालिटीज आप में दिखा सकते हैं? यू विल प्रोजेक्ट योर पॉजिटिव क्वालिटीज ऑन दिस लेडी। और अगर आपके मन में अपने बचपन की कोई स्टोरी, कोई कैंडिडेट है, उसकी मदर ने बहुत मेहनत करके उसको पाला और बड़ा करा 2-3 साल की एज से, और उसके फादर की डेथ हो गई थी। फादर चाहे फौज में डेथ हो गई, सिविल में डेथ हो गई, फादर वॉज ए फार्मर, फादर वॉज एन ऑफिस वर्कर, कुछ भी थे, तो मदर ने तो बहुत सैक्रिफाइस करी। उस एनवायरनमेंट में अगर पढ़े लिखे है मदर, ग्रेजुएशन है, तो फौज, और फौज से रिलेटेड है तो फौज में चली जाती है। बाकी तो मैरिड को अलाउड ही नहीं है। इट्स ओनली द डिफेंस विडोज हु कैन गो। बच्चा होने के बाद दे कैन गो। तो डिफेंस विडो है तो शी कैन गो। लेकिन अगर डिफेंस विडो नहीं है तो शी कैन नॉट ज्वाइन फौज, अगर एजुकेटेड भी है। और अगर विलेज की है तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। उसने कितनी मुश्किलों से इस बच्चे को पाला, और अभी ये बच्चा बड़ा हो गया और आपकी एज का हो गया, इज गोइंग फॉर एनडीए। तो नेचुरली वो कैंडिडेट रिलेट करेगा इससे कि ये मैं हूं बचपन में, और मेरी मदर ने कितनी सैक्रिफाइस करी, कितनी मेहनत करके मुझे पाला और बड़ा करा, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू गिव बैक समथिंग टू माई मदर एंड टू गिव बैक समथिंग टू माई कंट्री। तो आप बताइए मुझे कि ये बच्चा हीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अपनी थॉट्स आपके हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपकी है, एक्शंस आपके हैं। यू ओनली नीड एन ऑब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट दोज थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ योर्स थ्रू समवन, बिकॉज दिस इज ए प्रोजेक्शन टेक्निक। तो बताते हैं कि आपकी अगर एज मिल रही है और जेंडर मिल रहा है, तो मैंने बोला ना, नथिंग लाइक इट, फिर तो बहुत आसानी से मैच हो जाएगा। लेकिन एज जेंडर मिल रहा है, जो एक कोने में आदमी खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद में फिर बात आती है एजुकेशन लेवल और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की। एक बंदा झाड़ू लगा रहा है, लेबरर टाइप लग रहा है, फावड़े से मिट्टी खोद रहा है, तो आपके साथ तो उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशन लेवल मैच नहीं हो रहा, तो क्या वो हीरो नहीं हो सकता? तो ये फिजूल की बातें दिमाग से आप निकाल दो, स्टोरी अच्छी बनाने के ऊपर ध्यान दो, और एक मजदूर भी बहुत एंथुजियास्टिक, जिम्मेदार और आगे बढ़ने वाला इंसान हो सकता है। एक गरीब बच्चा भी बहुत आगे बढ़ने वाला इंसान हो सकता है। आर प्राइम मिनिस्टर इज द लाइव एग्जाम्पल। जो चाय बचपन में बेची, उनकी माँ ने घरों में बर्तन भी साफ करे। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। थोड़ा और हिस्ट्री में चले जाओ, 19th सेंचुरी में रामानुजन, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, ही वॉज ए सी पोर्टर। बहुत गरीब परिवार से था, बट ही वॉज ए सुपर जीनियस। जो समुंदर पे जहाज आते हैं, जहाज में सामान लादते हैं, सामान उतारते हैं, वो मजदूर था रामानुजन। तो अब आपको सर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो मैच ही नहीं कर रहा, एजुकेशन लेवल तो मैच ही नहीं कर रहा, तो मैं कैसे उसको हीरो चुन लूँ? तो ये सब बातें आप सोचना बंद कर दो। स्टोरी के ऊपर आप फोकस करो कि स्टोरी कहाँ कैसे आप बना सकते हो, और कैसे उसका आप अचीवमेंट्स, उसका राइज आप दिखा सकते हो अपनी स्टोरी में। बहुत डिटेल में मैंने आदित्य क्लियर कर दिया है। सबको, एवरीवन हु वॉचेस दिस विल बेनिफिट, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती, और आई डोंट नो कहाँ से ये आपके ख्याल दिमाग में भर दिए गए हैं कि जेंडर और एज मैच कर लो।
Now don't have this doubt in your mind, you can make a very good story. Next, Rahul Yadav, sir, can you make video on how to convince IO on drop year NDA SSB? मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपकी बात में नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका कुछ ईयर ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप ईयर NDA SSB, मतलब आपने NDA का SSB नहीं दिया कोई, इफ़ आई एम राइट। ड्रॉप ईयर के मतलब या तो आपने स्कूल की क्लास में कोई साल ड्रॉप कर दिया और फिर अगले साल एग्ज़ाम दिया, वो तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही आपके क्वेश्चन से। NDA के एग्ज़ाम में आप एक बार अपीयर नहीं हुए तो हाँ, पूछा तो जाएगा। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो NDA में एक बार भी अपीयर नहीं हुए। मेरे पास भी कई कैंडिडेट आते हैं एंड व्हेन आई आस्क देम कि भाई, तो सर रिटन क्लियर नहीं हुआ, तो मोस्ट लाइकली दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो आप क्या कन्विंस क्या करोगे इसमें? नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, क्या करोगे इसमें? अब क्यों नहीं क्लियर हुआ तो फिर बहाने मत बनाने पड़ लग जाओ, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग, सर एक्चुअली ये हो गया था, वो हो गया था, वो सब कुछ नहीं। सर आई शुड हैव वर्कड हार्ड, नहीं हुआ सर मेरा, बट आई लर्न माई लेसन। गलती हो जाती है तो गलती से लेसन ड्रॉ कर लो और सीख लो और आगे बढ़ जाओ। तो जहाँ भी गलती हो रही है, जहाँ भी गलती हो रही है, चाहे परसेंटेज ऑफ मार्क्स कम है, जहाँ ड्रॉप हो गया NDA का, नहीं रिटर्न क्लियर हुआ, हाँ गलती है, मेरी गलती है, मानो सर इट इज़ माई फॉल्ट। तो सच्चाई मान लेना ये बहुत 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 बड़ा काम है कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे, सर इट इज़ माई फॉल्ट। So what are you doing to overcome that? I am doing this, and I have done this, and I have shown. गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, जो घुटनों के बल चलते हैं वो नहीं गिरते। तो आप गिर क्यों गए? घोड़े पे चढ़ा था मैं। तो एनीवे, मतलब ये है कि जिनके एम हाई होते हैं उनको ठोकर भी लगती है। जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा है वो फिसलेगा भी, चोट भी खाएगा, और जो घर में AC में बैठा है वो क्या गिरेगा, क्या चोट खाएगा। तो आपने मेहनत करी, आपने प्रयास करा, यू मेड एन एफर्ट, सिंसियर एफर्ट, दैट इज इनफ। तो वो कोई उसमें आपको रीजंस, एक्सक्यूजेस, बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी बात में बहाना आप बनाइए भी मत। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अंकुश कुमार, इज इट नेसेसरी टू रिलेट वर्ड्स इन WAT विथ लाइफ, एंड सर हाउ टू एस्टेब्लिश कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन TAT, WAT एंड SRT? अंकुश, देखो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मत करो, सिंपल रखो। किसने कहा कि WAT के वर्ड्स के सेंटेंसेस अपनी लाइफ से आप रिलेट करो? मेरा वीडियो देख तो लो, प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं सारे वीडियोस, टाइटल भी दिए हुए हैं, एक बार क्लिक करके देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है, वही बातें फिर बार बार रिपीट होती हैं, चलो नो हार्म, लेकिन एक बार वीडियो देख लेना, इसके बाद भी देख लेना वो वीडियो। उस वीडियो में मैंने क्या बताया है कि WAT के जो सेंटेंसेस आप बना रहे हो, एक अराउंड यू और एक अवे फ्रॉम यू। तो अराउंड यू में आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ आ सकते हैं, कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आपको अपनी लाइफ से रिलेट करने हैं, हो जाएंगे, कुछ अपने आप ही हो जाएंगे। एग्जाम्पल में मैंने दिए हुए, एक वर्ड लिया है फैमिली, फैमिली के ऊपर अराउंड यू एंड अवे फ्रॉम यू दोनों मैंने बना के दिखाए हैं। तो जो इस तरीके के सेंटेंसेस हैं, इमोशनल सेंटेंसेस हैं, या आपके अपने आप से क्लोजली रिलेटेड है, फैमिली है, फ्रेंड है, हेल्प है, दैट यू आर गिविंग हेल्प टू अदर्स, इस तरीके के वर्ड्स के सेंटेंसेस आप अपने चारों तरफ बना सकते हो, बनाने भी चाहिए, बना सकते हो ये नहीं, बनाने चाहिए, ठीक है।
family bonds are a great support for life. ठीक है, all members of the family work together for the progress of the family, या जो भी जैसे से बनाना चाहो. तो ये आपकी अपनी लाइफ के आसपास आ रहा है. अब फैमिली पे आप सोल्जर, फॉर ए सोल्जर द आर्मी इज द फैमिली. सोल्जर डजंट गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू हिज ड्यूटी एज कंपेयर टू फैमिली. कुछ भी बना सकते हो, तो ये आप अपने से थोड़ा दूर वाले बना रहे हो. दोनों में बना सकते हो, लेकिन फैमिली वर्ड है, इमोशनल है. फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब आसपास में, ब्रदर, सिस्टर, अपने चारों तरफ बना लो. लाइफ से रिलेट करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. और कुछ हैं जो आप अपने से दूर बनाओगे, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, पर्टिकुलरली फियर, एंगर, माई फैमिली गेट्स एंग्री, ये बनाओगे. तो रियल लाइफ से रिलेट क्या करोगे इसमें? आई गेट एंग्री. तो ये अच्छे सेंटेंस, आई वगैरह तो यूज़ भी नहीं कर सकते हो, अच्छे सेंटेंसेस नहीं हैं. और इनको आप अवे फ्रॉम यू बनाओ और दुनिया भर के उसमें बनाओ. एनवायरनमेंट है, स्पेस है, रेलवेज है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, फॉरेन अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, बैंकिंग है, कॉमर्स है. कितने अलग अलग फील्ड्स हैं. सोल्जर है, ब्रेवरी है, तमाम फील्ड्स हैं. उन फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड में आप सेंटेंसेस बनाइए. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि दे शुड रिलेट टू योर ओन लाइफ. यहाँ नॉलेज कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा है. ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप थिंकिंग, एनालिसिस, ये चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं. तो उसमें आपकी लाइफ से रिलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. और टीएटी में भी नहीं है. टीएटी में भी ये बताया गया है कि पीआईक्यू से रिलेट कर दो. मैंने तो पिछली वीडियो में डाला है कि अच्छा, आपकी हॉबी क्रिकेट है और एक लड़की है, उसकी हॉबी डांसिंग है. अब वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई है, तो हाउ विल यू रिलेट दिस स्टोरी विद योर पीआईक्यू? परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, आपके पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉबीज हैं, गेम्स हैं, यही तो है ना पीआईक्यू में. तो आप क्रिकेटर हो, तो आपने बोला ये मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, इनको हम क्रियाक्रम करके आए एंड देन आई प्लेड क्रिकेट. ऐसे मैच करोगे? लड़की बोली मैंने तो डांस करा उसके बाद में, ऐसे मैच करोगे? तो व्हाट नॉनसेंस. पीआईक्यू से. अब अगर आप क्रिकेटर हो और स्टिमुलस, सेम क्रिकेटर हो और ये लड़की डांसर है, और स्टिमुलस है कि एक आप प्लेग्राउंड का सीन है, तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी कि ही वॉज ए गुड क्रिकेटर. और कोई फंक्शन का सीन है तो वो लड़की के साथ मैच हो जाएगी कि शी गेव डांस परफॉर्मेंस. तो वो स्टिमुलस पर डिपेंड करता है. अब ज़बरदस्ती अगर आप तोड़ मोड़ करोगे स्टिमुलस के साथ में कि मुझे पीआईक्यू से मैच करना है, बहुत परेशान हो जाओगे, स्टोरी सारी बेकार हो जाएगी आपकी. इसी तरीके से यहाँ पर भी कि मुझे अपनी लाइफ से मैच करना है, या मुझे टीएटी से मैच करना है, या मुझे एसआरटी से मैच करना है, तीनों के अंदर कोई रिलेशनशिप, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई रिलेशनशिप नहीं है. जो जो दिया है उसका वही आंसर दीजिए और भूल जाइए. कोई सिचुएशन है, उसमें जो आपको एक्शन करना है वो एक्शन करिए. और उसको मैंने टीएटी में ये लिखा था, आप डब्ल्यूएटी में, भाई इट इज़ पहले ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ये आपकी साइकोलॉजी. अब आप उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हो. बनवा रहे हैं लोग कि पीआईक्यू से मैच करो. अब तुम हीरो लेडी को कैसे चुन लोगे, बच्चे को कैसे चुन लोगे. अब तुम अपने टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी को भी आपस में मैच कर लो. भाई उनको नमस्कार करिए और अपनी बुद्धि से काम करिए. चलो, अपने क्वेश्चंस कमेंट्स बॉक्स में नीचे डालो और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो. दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वॉचिंग माय वीडियोज़. यू आर गिविंग मी respect and you have faith in what I am telling you.
Please continue watching and please keep on asking questions. Bye bye.